السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج کا یہ ویڈیو BUDC 134 اردو نظم کا مطالعہ کا جو BA جنرل اردو ہے ان لوگوں کا یہ بک آئے گا۔ تو اس سے پہلے میں بلاک 1 کی ویڈیو ڈال رہی ہوں اس میں، اور بلاک 2 میں جو نظم دی ہوئی ہے ان کی نظم کا میں مطالعہ کروں گی۔ اس کے بعد اس کا جو تصریح دی ہوئی ہے اس تصریح کو بتانے کی کوشش کروں گی جو کتاب میں ہی دی ہوئی ہے نا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کتاب آ گئی ہے تو آپ اس میں سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، اگر نہیں آیا ہے تو کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد کاپی میں نوٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور کافی چیز سننے سے زیادہ جلدی یاد ہوتی ہے، اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، سننے کی کوشش کیجیے، ہے نا۔ تو بلاک 2 میں اس کی نظم نگاری دی ہوئی ہے، نظم کی خصوصیات دی ہوئی ہے، لیکن میں نظم نگاری یہ سب نہیں پڑھوں گی۔ میں اس ویڈیو میں نظم کی جو نظم دی ہوئی ہے نظم اور اس کی تصریح پڑھوں گی، جو اس کے اور جو باقی ویڈیو آئے گی دوسرے دن کا، تو اس میں اس کی نظم نگاری یا نظم نگاری کی خصوصیات وہ میں بتاؤں گی، لیکن اس ویڈیو میں اس کی جو خصوصیات تصریح دی ہوئی ہے وہ میں پڑھوں گی، اور اس کی جو حالات زندگی ہے یہ ساری چیزیں میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو اس کا میں ایک پلے لسٹ بناؤں گی جس میں آپ کو صرف تصریح جو BA جنرل اردو جو جس کا سبجیکٹ کوڈ ہے اس کی صرف تصریح اس پلے لسٹ میں رہے گی۔ تو یہ جو مفلسی ہے، یہ مفلسی اس نظم کا نام ہے، یہ نظر اکبر آبادی کی نظم ہے جس کا نام مفلسی ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کو ریڈ کریں گے، اور آپ لوگوں کو یہ نظم رٹا مان لینا ہے، ایک دم پورا یاد کر لینی ہے پورا، جیسے کہیں سے بھی اگر آپ کو یہ آثار دیکھے تو آپ کو جیسے دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ نظیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی کا اثار ہے۔ تو اگر آپ کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا، آپ کو کوشچن میں دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ یہ نظیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی سے یہ اثار دی ہوئی ہے، تو آپ کو اس کی تصریح بنانے میں اور بھی آسانی ہوگی، ہے نا۔ تو یہ یاد رکھنی ہے نا۔ تو چلیں مفلسی کو پڑھتے ہیں۔ مفلسی: جب آدمی کے حال پا آتی ہے مفلسی، کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پا کے آتی ہے مفلسی، کہتے تو اب حاکم کی سب سے بڑی ہے شاہ، تعظیم جس کی کرتے ہیں نواب اور خان، مفلسی ہوئے تو حضرت لقمان کیا ہے یا، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو تو کوئی نہیں پوچھتا میاں، حکومت حاکم کی بھی ڈوباتی ہے مفلسی، جو اہل فضل عالم و فضل کہاتے ہیں، مفلسی ہوئے تو کلمہ تلک بھول جاتے ہیں، مجھے پوچھے کوئی الف تو اسے بتاتے ہیں، اور جو غریب غربا کے لڑکے پڑھاتے ہیں ان کی تو عمر بھر نہیں جاتی ہے مفلسی، مفلسی کرے جو آن کے مجلس کے بیچ حال، سب جانے روٹیوں کا یہ ڈالا ہے اس نے جال، گر پڑے تو کوئی نہ لیوے اسے سنبھال، مفلسی میں ہوئے لاکھ اگر علم اور کمال، سب خاک بیچ آ کے ملاتی ہے مفلسی، مفلسی کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر، ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کی خون پر، جس طرح کتے لڑتے ہیں ایک استخوان پر، ویسا ہی مفلسی کو لڑاتی ہے مفلسی، کرتا نہیں حیا سے جو کوئی وہ کام آ، مفلسی کرے اس کے تئیں انصرام آ، سمجھے نہ کچھ حال نہ جانے حرام آ، کہتے ہیں جس کو شرم حیا ننگ و نام آ، وہ سب حیا وہ شرم اٹھاتی ہے مفلسی، لازم ہے گر غمی میں کوئی شور گل مچائے، مفلسی بغیر غم کی ہی کرتا ہے ہائے ہائے، مر جاؤ گر کوئی تو کہاں سے اسے اٹھائے، اسی مفلسی کی خواریاں کیا کہوں میں ہائے ہائے، مردے کو بے کفن کے گڑاتی ہے مفلسی، چولہا تو آن پانی کے مٹی میں آبی ہے، پینے کو کچھ نہ کھانے کو اور نے رکابی ہے، مفلسی کے ساتھ سب کے تئیں بے حسابی ہے، مفلسی کی جو روح سچ ہے کہ یا سب کی
भा इज्जत सब उसकी दिल की गवाती है मुफलसी। कैसा ही आदमी हो पर अफलास के तफील, कोई गधा कहे उसे ठहरावे कोई बेल। कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फेल फेल, मुँहखुश दाँत जर्द बदन पर जमा है मैल। सब कुछ सब शकल कीतियों की बनाती है मुफलसी। हर आन दोस्तों की मोहब्बत घटाती है, जो आसना है उनकी तो उल्फत घटाती है। अपने की महर गैर की चाहत घटाती है, शर्म हया व इज्जत व हरमत घटाती है। हाँ नाखून और बाल बढ़ाती है मुफलसी। जब मुफलसी हुई तो शराफत कहाँ रही, वो कद्रजात की वो नजाबत कहाँ रही। कपड़े फटे तो लोगों में इज्जत कहाँ रही, ताज़िम और ताज़े की बाबत कहाँ रही। मजलिस की जूतियों पर भटाती है मुफलसी, रखती नहीं किसी की ये गैरत की आन को। सब खाक में मिलाती है हरमत की शान को, सो मेहनतों में उसकी खपाती है जान को। चोरी पा आके डाले हैं मुफलसी के ध्यान को, आखिर नदान भीख मंगाती है मुफलसी। दुनिया में लेके शाह से ए यारता फ़कीर, खालिक ना मुफलसी में किसी को करे अशीर। अशराफ को बनाती है उन अशराफ को बनाती है एक आन में हकीर। क्या क्या मैं मुफलसी की खराबी कहूँ नज़ीर, वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलसी। ये पूरी नज़्म हो गई। नज़्म थोड़ी सी लंबी है लेकिन आप लोगों को इसको याद कर लेनी है। अब उसके बाद उसकी जो तसरी यहाँ पर हर बंद की तसरी दी हुई है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। मुफलसी का सबसे पहला वाला बंद, जब आदमी के हाल पर आती है मुफलसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलसी। प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलसी। ये दुख वो जाने जिस पा के आती है मुफलसी। तो ये नज़ीर अकबर आबादी उर्दू नज़्म के एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने फ़ितरी मौज़ूआत के अलावा समाजी, माशी और माशराती मौज़ूआत पर भी नज़म लिखी। ऐसी ही नज़मों में नज़ीर की नज़म मुफलसी का शुमार होता है। ये नज़म नज़ीर के मिजाज के ऐन मुताबिक है। इस नज़म को उन्होंने 5 मरसियों के बंद यानी मखमस में तहरीर किया है। ये एक तूल नज़म है जिसमें समाजियाती मताला के साथ नज़ीर ने एक हक़ाइक़ की तरफ भी इशारा किया है, जिनकी वजह से मुफलसी और बदहाली के फैलने का इम्कान रहता है। 19 बंद पर मुश्तमिल नज़म मुफलसी बुनियादी तौर पर वजूहाती अंदाज की नज़म है। इस नज़म में नज़ीर ने अपने मशाहदे की गहराई और तस्बिया व तलमी के इस्तेमाल और माहौरे की गर्मी से ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि ये नज़म मुफलसी के मुख्तलिफ पहलू पर रोशनी डालती है। ये जो सबसे पहले इसका इंट्रो दिया हुआ नज़ीर अकबर आबादी की, ये हर बंद में आपको लिखनी है। जैसे ये पहला बंद यहाँ पर ही लिखी हुई है, उसके बाद बंद की आ जाएगी तसरी, उसके बाद बंद की तसरी आएगी जो बतानी है। लेकिन सब बंद, जितनी भी बंद की आपको तसरी बनानी है तो सबसे पहले आपको ये वाली लिखनी है कि नज़ीर अकबर आबादी उर्दू नज़्म के एक ऐसे शायर हैं, उनकी जो तारीफ़ में ये लिखी हुई है उसको लिखनी है। उसके बाद जिस बंद की तसरी करने के लिए बताया जा रहा है उस बंद की तसरी बनाना है। तो सबसे पहला वाला बंद हम बताते हैं। नज़्म के पहले बंद में नज़ीर अकबर आबादी ने बताया है कि जब आदमी पर मुफलसी का हमला होता है तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसान को परेशान करती है। कभी वो रात भर भूखा सुलाती है और कभी प्यासा रहने पर मजबूर कर देती है। जिस पर भी मुफलसी आती है उसे हर किस्म के दुख उठाने पड़ते हैं। हकीम जो मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करता है और जिसकी इज़्ज़त बड़े बड़े नवाब और पठान भी करते हैं, लेकिन वो भी गरीब हो जाए तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। हद ये है कि लहमान से बड़ा तबीयत और ईशा जैसे मशिया भी मौजूद हो, लेकिन वो गरीब हो तो उसकी तमाम तर हुकूमत गरीबी में डूब जाती है। उसके बाद आ जाएगा जो अहल फ़ज़ल आलम व फ़ज़ल कहाते हैं, मुफलसी हुए तो कलमा तलक भूल जाते हैं। पूछे कोई अलीफ तो उसे बे बताते हैं, वो जो गरीब गरबा के लड़के पढ़ाते हैं, उनकी तो उम्र भर नहीं जाती है मुफलसी। तो ये हो गया
और उसके बंद की तस्वीर यहाँ पर ही दी हुई है। ये तीसरी बंद है, इसीलिए यहाँ पर ही तीसरी बंद बताया गया है। तो ये तस्वीर लिखने से पहले आपको जो मैं पहले बताई, नज़ीर अकबर आबादी की तारीफ़ लिखनी है और नज़्म के सिलसिले में लिखनी है कि वो नज़्म किस मकाम की हैसियत रखती है ना, और किस तरह की है। तो वो जो पहला वाला 5-6 लाइन दी हुई है उसको पहले याद करनी है। वो एक बार याद कर लेने से ही हो जाएगा हर बंद के लिए। तो ये तीसरी बंद है। नज़ीर अकबर आबादी ने नज़्म के तीसरी बंद में बताया है कि अहले आलम व फजल भी हो और उनको मुफलसी घेर ले तो वो गरीबी की वजह से कलमा तक भूल जाने के मरतकब होते हैं। भूखे से कोई अलीफ के बारे में पूछे तो वो उसे बे बताता है। गरीब के बच्चों को पढ़ाने वाला सदा मुफलसी ही रहता है और अगर गरीब के घर मुफलसी आ जाए तो वो उम्र भर जा नहीं सकते। अगर मुफलसी किसी मजलिस के दरमियान अपना हाल बयान करता है तो लोग यही तस्वीर करते हैं कि उसने रोज़गार हासिल करने के लिए ये जाल फैलाया है। गरीब के पास लाखों इल्म व कमाल हो लेकिन वो मुफलसी हो तो हज़ार संभाल लेने के बावजूद उससे लग्जिस हो जाती है। इस तरह मुफलसी इंसान की तमाम सलाहियतों को खाक में मिला देती है। उसके बाद वाला बंद दी हुई है, मुफलसी की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर। हर आन टूट पड़ता है रोटी के खून पर, जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक अस्तख्वान पर, वैसा ही मुफलसी को लड़ाती है मुफलसी। नज़्म के 5वें बंद में नज़ीर अकबर आबादी ने बताया है कि जब इंसान मुफलस हो जाता है तो उसे अपनी इज्जत से ज़्यादा रोटी या नान प्यारी होती है और वो एक एक रोटी पर जान देने के लिए मजबूर हो जाता है, जिसकी वजह से वो जहाँ भी रोटी और खाना के खवान देता है उस पर भूखे कुत्ते की तरह टूट पड़ता है। इस तरह मुफलसी ना सिर्फ रोटी के लिए झगड़ा कराती है बल्कि हद दर्जा जलील व रिस्वा भी कराती है। मुफलसी का नतीजा होता है कि हया की बुनियाद पर जिन कामों ने इंसान खुद को बचाए रखता है वो सब काम करने पर मजबूर हो जाता है और उसमें हलाल व हराम की भी तमीज़ बाकी नहीं रहती। गज जिसे शर्म हया कहते हैं, मुफलसी की वजह से वो इंसान से रुखसत हो जाती है। उसके बाद वाला ये सारे जो जितनी भी आसार दिए हुए हैं वो एक एक छोड़ के दी हुई है, या फिर अगर आप देखते हैं 6 वाला, जैसे इसकी मैं आसार रीड की 5 बंद वाले, ये 5 बंद के आसार हैं, लेकिन इसके नीचे में जो 6 नंबर बंद है उसकी भी तस्रीर यही वाला होगा, है ना। उसी तरह यहाँ पर है, लाजम है गरमी में कोई शोरगुल मचाए, मुफलसी बगैर गम की ही करता है हाय हाय। मर जाओ गिर कोई तो कहा से उसे उठाए, उस मुफलसी की खोरिया क्या क्या कहूँ मैं हाय। मुर्दे को बेकफन के गिराती है मुफलसी। चूल्हा तो आन पानी के मटके में आबी है, पीने को कुछ ना, खाने को और ना रकाबी है। मुफलसी के साथ सबकी ताय बेहिसाबी है। मुफलसी जो रूह सच है कि याद सब की भाई है, इज्जत सब उसके दिल की गवाती है मुफलसी। कैसा ही आदमी हो पर अफलास के तफील, कोई गधा कहे उसे ठहराओ कोई बेल। कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फेल, मुँह खुद दाँत जर्द, बदन पर जमा है मेल। सब शक्ल कैदियों की बताती है मुफलसी। हर आन दोस्तों की मोहब्बत घटाती है, जो आशना है उनकी तो उल्फत घटाती है। अपनी के मर गिर की चाहत घटाती है, शर्म हया व इज्जत व हरमत घटाती है। 7वें बंद में नज़ीर अकबर आबादी ने बताया है कि अगर इंसान पर गम की पहाड़ टूट पड़े और शोरगुल मचाए तो लोग गवारा कर लेते हैं, लेकिन मुफलसी का ये आलम होता है कि वो गम के बगैर ही हाय हाय करता है और उसके वाह वालिया मचाने की वजह ये भी होती है कि मुफलसी की वजह से उसमें इस कदर ज़िल्लत आ जाती है कि अगर कोई मर जाए तो लाश उठाने के लिए उसके पास सरमाया नहीं होता, लाश को बेकफन दफन करना पड़ता है। मुफलसी की वजह से ना तो चूल्हे पर तवा रखा जा सकता है और ना मटके में पानी भरा जा सकता है। मुफलसी खाने पीने और उसके लिए रकाबी हासिल करने को भी मोहताज कर देती है, जिसकी वजह से मुफलसी बेगैरियत बन
बन जाता है और गरीब की बीवी की इज्जत भी हर एक के दिल से ख़त्म हो जाती है। इंसान कितना ही अजीम क्यों ना हो, अगर मुफलसी उसे घेर ले तो उसकी तफील इंसान की काबिलियत घट जाती है और उसे लोग गधे और बैल का दर्जा देते हैं, क्यों ना कि वो अफलास के मारे फटे कपड़े और बिखरे बालों के साथ जिस्म, मुंह और बदन के तवाज़ा नहीं दे सकता। अफलास की वजह से इंसान की शक्ल कैदियों जैसी हो जाती है। नज़ीर अकबर आबादी मुफलसी का असर ये बताते हैं कि जब किसी पर मुफलसी आती है तो उसकी वजह से दोस्तों में इज्जत घट जाती है और पानी वालों की मोहब्बत में कमी आती है, अपने और गैर में फ़र्क बढ़ाती है और उसके साथ शर्म व हया के अलावा इज्जत और हरमत में भी मुफलसी की वजह से कमी आती है। बहरहाल इंसान पर मुफलसी आ जाए तो उसकी बदौलत जिस्म की सफाई ना होने से बाल और नाखून बढ़ जाते हैं और इंसान साफ सुथरे रहने की सिफत खो देता है। जब मुफलसी हुई तो शराफत कहाँ रही, वो कद्र ज़ात की वो नज़ामत कहाँ रही। कपड़े फटे तो लोगों में इज्जत कहाँ रही, ताज़ीम और ताज़ी की बाबत कहाँ रहे। मुफलसी की जूतियों पर बैठाती है मुफलसी, रखती नहीं किसी की ये गैरत की आन को, सब खाक में मिलाती है हरमत की शान को। सो मेहनतों में उनकी खपाती है जान को, चोरी पा आके डाले ही मुफलसी के ध्यान को। आखिर नादान भीख मंगाती है मुफलसी, दुनिया में लेके साह से ए यार ता फ़कीर, खालिक ना मुफलसी में किसी को करे अशीर। असराफ को बनाती है एक आन में हकीर, क्या क्या मैं मुफलसी की खराबी कहूँ नज़ीर, वो ना जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलसी। अगली बंद दी हुई है, लेकिन यहाँ पर ही नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म जितना नंबर बंद है उस बंद को लिखना है। 7 8 जो भी बताते हैं कि मुफलसी की वजह से शराफत का खात्मा हो जाता है, इंसान की इज्जत बाकी नहीं रहती। इज्जत के खात्मे के साथ ताज़ीम और तवज़्ज़ो ख़त्म हो जाती है और इंसान इस कदर ज़लील होता है कि उसे महफिलों में जूतों के करीब बैठना पड़ता है। कर्ज मुफलसी एक ऐसी हकीकत है जो गैर को खाक में मिलाने, मेहनत का खात्मा करने और इंसान को चोरी की तरफ राग़िब करने का काम अंजाम देती है और उसी मुफलसी की वजह से इंसान भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है। नज़्म के आखिरी बंद में नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि दुनिया में खुदा किसी बादशाह या फ़कीर को कभी मुफलसी में गिरफ़्तार ना करे, क्यों ना कि मुफलसी ही शरीफ इंसान को हकीर बनाती है। उसकी खराबियाँ कहाँ तक बयान की जाए, बस इतना कहा जा सकता है कि खुदा हर इंसान को मुफलसी से महफूज रखे, क्यों ना कि मुफलसी इंसान के दिल को जलाती है। नज़ीर अपनी इस नज़्म की दवाए कलमात पर ख़त्म करते हैं। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म मुफलसी में बेशुमार मुहावरे, तशबीहात और इस्तारे इस्तेमाल हुए हैं। उनकी नज़्म में तलमीहात की भी कमी नहीं। वह हज़रत लक़मान और हज़रत ईशा की तलमी इशारा अपनी नज़्म में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने नए लफ्ज़ियात को इस्तेमाल करने के साथ साथ रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों को भी इस नज़्म में जगह दी है। उसकी तशबीहात और इस्तारे से पता चलता है कि नज़ीर अकबर आबादी मुफलसी को एक जुर्म समझते हैं, चुनांचा वो इंसान को मुफलसी के दलदल से निकालना चाहते हैं, क्यों ना कि मुफलसी की वजह से शराफत और इज़्ज़त का खात्मा हो जाता है। ये जो लास्ट वाली जो लाइन यहाँ पर दी हुई है नज़्म की तारीफ़ के ऊपर, तो आपको वहाँ पर ही लिखना है। पहले नज़्म की बंद लिखनी है, उसके बाद नज़्म की जो नज़ीर अकबर आबादी की तारीफ़ दी हुई वो लिखना है, उसके बाद तसरीह जो अभी रीड की उसको लिखना है, उसके बाद ये जो लाइन दी हुई है नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म की तारीफ़ के सिलसिले में, उसको उसके लास्ट वाला जो ये होगा वहाँ पर आपको ये वाली लिखनी है। तो सबसे पहले आपको जो नज़्म की तारीफ़ दी हुई है, उसके बाद उसकी तसरीह, उसके बाद ये सारी यहाँ से यहाँ तक आपको लिखनी है नज़्म के सिलसिले में नज़्म की जो तारीफ़ दी हुई है।